Good morning, dear students. Welcome back to my channel. Hope you all are safe inside your home. Today I will teach you chapter 3 of standard 5, okay, which is soil erosion and conservation. Okay, so in this chapter we will learn about so many things that why soil get eroded, why we need to conserve soil, why soil is very important for us and as well as plants and animals. So we will learn about all these points. I have made some points, so I will show you those points later. Okay, so first we will learn that what is soil made of. Okay, so today I thought as we all are inside our home, so I will show you practically in my garden that what is soil made up of. Okay, so let's go to my garden and see that practically we will see what is soil made up of. Okay, so my dear student, now I am standing outside of my home to practically show you what is soil made up of. Okay, so according to the book, soil is made up of broken down of rock particles, remains of dead plants and animals, water and air. So now let's see actually it's true or not. I will practically show you that what is soil made up of. So now I am going to dig the soil. I am not used to it actually. This topmost layer is known as topsoil, where humus, maximum humus is present. So, as you can see, these are the small particles of rocks, and these are the remains of dead plants. And as I am touching the soil, so I can tell you that it is completely wet. That means water is also present. So and air also. So now we get to know that rock is made up of small particles of rocks, remains of dead plants, water and air. Okay. And just remember, this topmost layer is known as topsoil. Okay, so practically I have shown you what is soil made up of. Hope you all understood. Hope you all have understood whatever I have shown in my garden, that what is soil made up of. Okay, so now we can get go inside to the chapter and see those points which I have made. Okay, so before that you should bring your pencil, pen, copy and book, so that whatever the important point I will tell you, you can underline that point. Okay. So I am giving you 10 seconds. Please bring your pencil, pen, copy and book. Then we will start. Okay. Welcome back, my dear students. I have already told you that I have made some points. Okay, so these are the points which I have made. You can write these points in your science copy. Okay. So the first point is what is soil made up of, importance of soil for plants, animals and for human being also. How is soil formed, soil erosion, different ways by which soil get eroded. I have mentioned these points. Okay, after finishing this much, then we will go to the conservation part. Okay, so I will make you understand in both English and Hindi, both the languages. Okay, so hope you all will understand. Okay, so let's go to the let's first understand the first point, what is soil made up of. Before that, please open your book. Okay, and in the second point we will learn what is soil made up of, which I have already practically shown you. Okay, that soil is made up of small particles of broken down rocks, remains of dead plants and animals, water and air. Soil क्या क्या चीज को लेके बना है, जो रॉक, छोटा छोटा पत्थर और remains of dead plants and animals, water and air. Okay, and plants collects all the nutrients, all the minerals which is needed to grow from the soil only. Okay, and soil is also a home for so many living organism. मतलब प्लांट अपने लिए जो मिनरल चाहिए होता है वो किससे कलेक्ट करता है, सॉइल से. और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका होम हम बोल सकते हैं क्या है, सॉइल है, मिट्टी है. ओके,
Now we will get to the second point which I have shown you, that importance of soil. What is the importance of soil for plants, human being and animals? Okay, so plants collect all the minerals, all the nutrients from the soil, okay, to which is needed टू ग्रो. ओके, प्लांट अपने लिए सारा मिनरल, सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से कलेक्ट करता है जो इसको चाहिए ग्रो करने के लिए और खाना बनाने के लिए. ओके, नाउ ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. सारे जो एनिमल होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो. Okay, so soil is very important for us, and so many living organism lives inside the soil like rabbits, earthworms. Okay, and soil also, we also collect so many things. We also build our homes like bricks. Bricks is made up of completely soil. Okay, nowadays cement bricks has already developed, but earlier soil bricks, we use soil bricks, and so many statues. Okay, so many things we what we make or we collect which are made up of soil. तो soil हमारे लिए भी बहुत ही important है. ठीक है, soil का घर आप देखे होंगे. ठीक है, home made up of soil. Okay, सो सॉइल हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ यू विल गो टू द सेकेंड पॉइंट विच इज हाउ इज सॉइल फॉर्म. सॉइल कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. तो सॉइल कैसे फॉर्म होता है, जब बड़ा बड़ा पत्थर ब्रोकन डाउन होकर छोटे छोटे स्मॉलर पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सॉइल फॉर्म होता है. तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग. तो क्वेश्चन कैन कम आल्सो, व्हाट इज वेदरिंग. यू विल राइट वेदरिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच रॉक्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. वेदरिंग एक प्रोसेस है जो जिसमें रॉक क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉलर छोटे छोटे पीस में. और वेदरिंग किस वजह से होता है, वेदरिंग कैन बी कॉज्ड बाय एनिमल्स, वाटर, एयर, प्लांट्स, रेन. ओके, the weather changes, so these are the caused by which weathering can occur. Okay, let me give you one example. कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत जोर से बारिश हुआ, ठीक है, बारिश होने की वजह से क्या होता है, द लार्जर रॉक्स नॉक्स अगेंस्ट ईच अदर. मतलब बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने एक दूसरे के साथ नॉक करते हैं. अगर आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मैं अभी बोलूंगी, एग्जाम्पल दूंगी कि अगर ये देखिए, ये मेड ऑफ है, कांच का बना हुआ, ये भी कांच का बना हुआ. अगर ये हवा के वजह से जोर से अपने आप के एक दूसरे के साथ नॉक किए, जोर से हवा आने के टाइम में जोर से नॉक किए, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा. ठीक है, और आपस में और नॉक करेंगे तो छोटे छोटे कन्वर्ट हो जाएंगे. उसी तरह रॉक जो होता है, बड़ा बड़ा रॉक, वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ हवा के वजह से या फिर फ्लोइंग वाटर के वजह से एक दूसरे के साथ नॉक करते हैं तो पिबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर आपस में टकराने से पिबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर वही पिबल्स अपने एक दूसरे के साथ टकराने के वजह से सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, फिर सॉइल फॉर्म होता है. ओके, आई विल प्रैक्टिकली शो यू द रॉक्स एंड द पिबल्स एंड द सैंड. ओके, और सैंड होने के बाद विंड का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि वो यही सैंड को सॉइल में ट्रांसफॉर्म करता है. ओके, नाउ वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट विच इज सॉइल इरोजन. ओके, so first we will know that different cause of soil erosion. The first cause is erosion by water, erosion by wind, erosion by human activities, and in human activities I have made two columns. Okay, so in the first is deforestation and the second is overgrazing. Okay, so why does soil get eroded? Because of these points only. Okay, so now you will understand about the term soil erosion. Okay, soil erosion कैसे होता है, क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सॉइल as the soil forms it settle down in layer. सॉइल जब फॉर्म होता है उसके बाद वो लेयर, मतलब which you have already known in standard 3, सॉइल का लेयर होता है. ठीक है,
So and the topmost part of the soil is known as topsoil. सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सपोज दिस इज द अपर पार्ट, ओके, तो ये ऊपर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है? टॉप सॉइल. एंड द ह्यूमस इज प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल. ह्यूमस क्या होता है? टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है एंड मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, और सॉइल को फर्टाइल करता है. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमस? ह्यूमस मीन्स लाइक डिकम्पोज ऑफ प्लांट्स, डिके ऑफ प्लांट्स, remains of animals, okay, all the natural things, all the natural waste material, when they mix up together they form humus which is present in the topsoil. So when because of the wind or water, the top part of the soil get eroded or get carried away okay, from one place to another place. जब wind या water के वजह से soil का ऊपर का part carried away हो जाता है, मतलब wind और water के वजह से वो एक place से दूसरे place चला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. क्यों? क्योंकि जब विंड और वाटर के वजह से सॉइल का ऊपर का पार्ट में ह्यूमस रहता है विच इज द फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. जब वही फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल गॉट कैरिड अवे बाय वाटर और विंड, तो क्या होता है? सॉइल द लेयर बिकेम बैरन. बैरन मीन्स वेयर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, जहाँ प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस बैरन लेयर को बोलते हैं सॉइल गॉट इरोडेड और सॉइल इरोजन. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड. ओके, नाउ वी विल गो टू द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन. ओके, सो द फर्स्ट कॉज इज सॉइल इरोजन बाय वाटर. So now we will learn about erosion by water. I have made some point. The first point is flowing rainwater. Flowing rainwater carries a part of the soil. Okay, soil. The second point is soil erosion by water is greater in hilly areas. Okay, and the third point is at plains flow of rivers slows down and deposits soil. Okay, and the fourth point is this causes river to change course and which result in floods. Okay, now I will make you understand these points in Hindi. So the first point is when the rainwater flows in the land, it carries away a part of the soil. जब rainwater land में flow करता है तो वो मिट्टी का कुछ part अपने साथ ही flow करवाता है, ठीक है, तो flow होता है, तो वो उसके वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, ठीक है. और उसके बाद soil erosion is and the second point, soil erosion by water is greater in hilly regions. hilly region में soil erosion पानी के वजह से soil erosion सबसे ज्यादा hilly areas में होता है, ठीक है. और क्या होता है? Thus the river carry more and more soil as they flow down. तो जब hilly areas में ऊपर से पानी बह के नीचे आएगा तो ऊपर से क्या होता है? बैंक होता है, बैंक, ठीक है. तो ऊपर में से क्या होता है? जो पानी जब बह के नीचे आता है, क्योंकि रिवर का बैंक होता है, तो उसमें से बहुत ही ज्यादा मिट्टी अपने साथ वो फ्लो करवा के ले आता है, ठीक है, रेन वाटर की वजह से. और जब प्लेन, देन द थर्ड पॉइंट, एट प्लेन्स फ्लो ऑफ रिवर स्लोज डाउन एंड डिपोजिट सॉइल. तो ऊपर से जब पानी बह के नीचे आया, ठीक है, तो फिर वो एक जगह में डिपोजिट करेगा मिट्टी. तो जिसमें डिपोजिट करता है वहां पर इतना मिट्टी डिपोजिट हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद वो जो रिवर होता है वो अपना जिस वे में, जिस रास्ते में वो फ्लो करता था, वो रास्ता चेंज हो जाता है, ठीक है. वो अपना क्या करता है? अपना कोर्स चेंज कर लेता है. मतलब अगर पानी बह के इस रास्ते में आ रहा था, यहाँ पर इतना मिट्टी हो जाएगा, उसको ऐसे चेंज करके दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा, ठीक है. इतना ज्यादा मिट्टी वहां पर क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है. तो इसके वजह से क्या होता है? फोर्थ पॉइंट, दिस कॉजेस रिवर टू चेंज कोर्स एंड which results in floods. क्योंकि अगर यहाँ पर मिट्टी आया, बहुत पानी आएगा, क्योंकि मिट्टी यहाँ रह जाएगा, तो पानी जब जोर से आता है तो फ्लोड होता है, ठीक है. Now we will learn about erosion by wind. So now we will understand about the term erosion by wind. Okay, so what do you mean by erosion by wind? Okay,
So strong winds cause the topsoil to be eroded, particularly in areas where is less vegetation to bind soil. Okay, तो जब विंड बहुत जोर से होता है, हवा बहुत जोर से होता है, तो क्या होता है, पर्टिकुलरली इन ड्राई एरियाज, ओके, लाइक डेजर्ट्स, ओके, ड्राई रीजन्स में सबसे ज्यादा इरोजन बाय विंड होता है, जैसे कि हिली एरियाज में सबसे ज्यादा इरोजन बाय वाटर होता है, उसी तरह ड्राई एरियाज में सबसे ज्यादा इरोजन बाय विंड होता है, ठीक है, क्योंकि जब जोर से हवा होता है डेजर्ट में तो इतना ज्यादा भी मतलब वेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि तो क्या होता है, लेस नंबर ऑफ वेजिटेशन ऑकर्स इन वेयर, इन डेजर्ट। तो जब वहां पर प्लांट ही नहीं होता है तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा, ठीक है, अगर मैं ये उंगली को पकड़ के रखूंगी तभी ना ये खींचने में ज्यादा, अगर मैं एक ही ऐसे पकड़ूंगी तो इसको मैं इजीली छुड़ा सकता हूँ, उसी जगह में इफ आई विल यूज माई ऑल 5 फिंगर्स टू होल्ड इट देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू लूज माई 1 फिंगर। उसी तरह जब मिट्टी में हम प्लांट लगाते हैं तो क्या होता है, सॉइल इरोडेड इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन डिजर्ट एरिया में क्या होता है, जैसे राजस्थान ये सब एरिया में इतना ज्यादा भी मतलब वेजिटेशन नहीं होता है, तो अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा, कुछ मतलब कोई नहीं रख सकता। तो इसीलिए जब विंड बहता है, हवा जोर से होता है, तो क्या होता है, सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होता है ड्राई डिजर्ट में, ठीक है, ड्राई एरिया में, ड्राई रीजन में, ठीक है, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए वेजिटेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। Now let's go to the third point, which is erosion due to activities of humans, which is deforestation and overgrazing. Okay, what we all humans are doing, because of our wooden requirement we are cutting down the trees, we are clearing the forest without thinking anything about the nature. हम क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के वुडन रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया, ये सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में बिना सोचे, नेचर के बारे में बिना सोचे हम क्या कर रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्लियर करने से क्या होता है, जब विंड होता है, रेन हो गया, ये सब जब होता है तो क्या करता है, दे कैरीज ए पार्ट ऑफ द सॉइल, वो एक सॉइल का एक पार्ट कैरी करके फ्लो करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब हम फॉरेस्ट को पूरा कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बैरन फील्ड हो जाता है कि नहीं, पूरा बैरन फील्ड कंप्लीटली लाइक डेजर्ट, ओके। तो क्या होता है, तो सॉइल क्या करता है, मिट्टी पूरा ऐसे पकड़ के रखा, मतलब जैसे मैं आपको मिट्टी क्या करता है, पूरा प्लांट को ऐसे पकड़ के रखा हुआ होता है, जब आप उसको ऐसे खींच के निकाल देते हो तो मिट्टी क्या होता है, थोड़ा लूज हो जाता है, ठीक है। जब लूज हो जाता है तो क्या होता है, मतलब इरोजन होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और इजीली मिट्टी मतलब सॉइल इरोडेड होता है, ओके। सो नाउ द सेकेंड टर्म इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, काउज दो एनिमल्स दे ईट द ग्रास एंड मेक द फील्ड बैरन, मतलब जो ग्रास होता है, छोटा छोटा प्लांट होता है, एक जगह में अगर बहुत सारे एनिमल, जैसे कि आप क्या करते हैं, मतलब एक स्पून में एक ही जन खा सकता है, अगर एक स्पून में 10 जन कूद पड़ेंगे तो क्या होगा, या तो स्पून टूट जाएगा, नहीं तो किसी और को भी चोट लग सकता है। उसी तरह जब एक जगह होता है, पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट जगह होता है, छोटा सा जगह होता है, अगर वहां पर आप बहुत सारे एनिमल लेके मतलब बहुत सारे एनिमल ग्रेजिंग करने के लिए चले गए तो क्या होगा, वो लैंड को कंप्लीटली क्लियर कर देंगे, ग्रास सब खा लेने से क्या होगा, वो एक बैरन फील्ड हो जाएगा, और बैरन फील्ड होने के वजह से क्या होगा, मतलब सॉइल इरोजन का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। जब तक सॉइल क्या करता है, सॉइल प्लांट को पकड़ के रखता है, उसी जगह से सॉइल इरोजन होने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। So my dear students, we have learned about some points, okay, hope you all understood, and tomorrow I will teach you, I will make you understand about the how can we conserve soil, okay. So today we have learned about the soil erosion, okay, the first part of the topic, so chapter. So tomorrow we will learn about the conservation, how can we conserve soil, okay. Hope you all understood. If you cannot understand any term, then please comment in my comment in below, and I will make you understand. And if you have liked my video, then subscribe for further chapter, okay. I will